ओके, See, ठीक है। whatever is the jurisdiction is, jurisdiction का जो categorization है सर, वो जैसे रहेगा, ठीक है सर, उसमें mainly the original jurisdiction आता है। जी सर। Another original means what? कि जहां पर वो first time हो, जी सर। full fledged. Then appellate jurisdiction. Appellate means what? कि higher court जहां पे उसकी decision by the court is question. But this is not an hardcore complete exercise of the same word, but this is above that, उससे ज्यादा है और उसके जो error है उसको भी वो करता है, but it exercise good point है। Then one is the inherent jurisdiction, like review, कि आप अपने ही judgment को review करें। This is something extraordinary. Even all the inherent jurisdiction, original jurisdiction, or even the appellate jurisdiction, यहाँ पे भी extraordinary है। Extraordinary. 32 extraordinary. So what is the meaning of extraordinary? ये चीज मैं ढूंढने का बहुत कोशिश किया कि what is the meaning of this extraordinary? So if you will find out what a particular problem, if somewhere particular remedies is there, भरत जी भी टी शर्ट पहने हुए हैं। So today is the t-shirt discussion. We are in majority Murari जी, पता नहीं others सही है सर, silent आज तक है। सबका डिस्कशन करना। पता नहीं मैं कब तक odd man out रहूंगा। Let us go. I would request. You are completely odd man now. अभी तक I would request everybody to switch on the cameras. It will be better a discussion, I believe. Yes, yes, बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। करते जी सभी लोग ऑन कर लीजिए। क्योंकि ये जो छोटा ग्रुप है ना, अभी कितने हैं हम लोग? Around 15. Okay. Yes, 15. कितना प्यारा लग रहा है कि we can interact to everyone. ग्रुप इतना छोटा ही हो और आराम से बात की जा सकती। But what was I was saying Extraordinary. Extraordinary. In a normal sense, if remedy is available and proper way is available for a particular kind of rights or particular kinds of problem, then this is the ordinary part. CPC, CRPC में भी बहुत सारे प्रोविजन है जो स्पेसिफाइड किए हुए हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक रेमेडी या स्पेसिफिक पनिशमेंट है। But once we are looking at 482 of the CRPC, it is not specific, it is a general nature. और वो जो पावर दिया गया है वो एप्लेट कोर्ट को ही दिया गया है कि भैया any circumstances whatever is left you are able to handle it, including all this. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं दूसरे लैंग्वेज में यदि कहूं कि देवी देवता से थोड़ा सा इंस्पायर होकर के, तो कई सारे शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, शिव का धनुष है, विष्णु का शिव का त्रिशूल है, विष्णु का सुदर्शन चक्र है, एंड दिस इज द अल्टीमेट वेपन, अल्टीमेट द लास्ट, उसके अलावा नहीं। आज के डेट में क्या कहते हैं, परमाणु बम है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे मिसाइल हैं, उसकी जरूरत कब पड़ती है? एट द लास्ट। So extraordinary jurisdiction is someone concerned to that part which is the last remedy, which must be invoked in ultimate conditions. जब कोई रास्ता नहीं बचे तब उसको इन्वोक करें। ऐसा सिचुएशन आता है जब हम 132 या 136 इन्वोक करते हैं इन द जुडिशियल पार्ट। यदि आप एनालॉग करें तो मैंने स्कैटर्ड तरीके से वो भी बोल दिया जब आप कनेक्ट करें तो। बट ये जो अस्त्र है ना वो एकदम अल्टीमेट नहीं है, इन बिटवीन इंद्र को भी कुछ मिला हुआ है और बाकी सारे देवी देवताओं को भी कुछ मिला हुआ है, उसी तरीके से डिफरेंट कोर्ट को भी कुछ कुछ मिला हुआ है। क्रिमिनल में आप कहें इनहेरेंट जुरिडिक्शन आप देखें 482 है और द हाई कोर्ट, लेकिन सिविल में आ जाए तो वहां पर इनहेरेंट जुरिडिक्शन है 151।
CPC में. This is the general provision applicable to all the procedures and especially those condition which is not defined into that. Even 129 court of record, even 142 of देख लीजिए, 141 देख लीजिए. This is the very peculiar part of power which is empowered to the Supreme Court only. Isn't it? वो सबके लिए नहीं है, किसी के लिए है. So these are the extraordinary. Something is plenary power. Plenary power is the again entirely different thing. वो चीज मतलब इवन पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू भी उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इवन कर्टेल नहीं कर सकते. जिसमें 136 है, जिसमें 32 है, जिसमें 121 है, सॉरी 129, उसके अंदर 142 है, बट नॉट 132 और 131. इट मे बी, बट ये सारे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं और जुरिडिक्शन है, इट कैन नॉट बी कर्टेल्ड. क्योंकि यदि इसको कर्टेल कर दिया जाए, हाँ, पार्लियामेंट कैन एक्सपेंड इट बट कैन नॉट कर्टेल. सो दीज आर द प्लेनरी पावर. क्योंकि इसको हटा दिया जाए तो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा. और खास करके इन दिस एरा जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन फेस कर रहा है, जिसका रिजल्ट कल आने वाला है, ऐसे सिचुएशन में यदि इसको हटा दिया जाए जहां पीएमएलए जैसे एक ड्रैकोनियन टूल्स को इंसर्ट किया गया है, मुझे जानते हैं एक एक्सपीरियंस में अपना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. मुरारी जी काइंडली म्यूट कर लें माइक. हाँ सर, मैं एक छोटा सा मेरा सजेशन था वो. हाँ प्लीज कीजिए, पहले आप कीजिए, मैं अपने फ्लो में आ गया. हाँ सर, अपना जो हमने फॉर्म 28 है, आपने बोला उसी को फॉलो करना है. दैट इज एक्सेप्टेबल. Once we say 136 is extraordinary, should we mention on the top extraordinary appellate jurisdiction or not? Yes, of course we can do that. Okay. But यदि हम उसको कुछ नहीं करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है सर. That's why my question was. This is for ours. देखिए, ये जो conflict है मेरे अंदर भी थी. मुझे लगा मैं extraordinary लिखूं या नहीं लिखूं. It is for our satisfaction, but someone if writing the appellate jurisdiction, this is again okay. Yes. But Sir, at मेरा this, हाँ, at Sorry, this sir. stage of SLP, वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखना चाहिए. जब वो अपील में ट्रांसलेट हो जाए तब वो वर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एग्जिस्टेंस नहीं बनता है. It will be appeal. Anyway, ये दो It will become an appeal. हाँ, श्रद्धा जी प्लीज. सर मेरा भी सर 136 को लेकर के ये एक जो सर ने क्वेश्चन पूछा सेम मेरा भी था, वो डाउट सर मेरा क्लियर हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन को लेकर के. सर दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा दैट व्हाट आर द रूल्स दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डिसिप्लिन्ड इन एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 136. तो सर अगर हम ऑर्डर 20 मतलब इसको सर एग्जेजरेट कैसे करना है, मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत लेंथी है. अगर सर इसका मैं आपको सुप्रीम कोर्ट रूल्स का एक्सट्रैक्ट यस सर स्क्रीन पे लेना चाह रहा था. जस्ट गिव मी द वन मोमेंट. अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग इवेंट मैं आपको बताना चाह रहा था बाय वे ऑफ दिस वन. लेट मी जस्ट टेक दिस ऑन स्क्रीन. शुरू करूं मैं? यस सर. अजय जी आप आइए, आपके साथ थोड़ा बात करते हैं. सर यस सर. एक कन्वर्सेशन में आएगा. देखिए, हम लोग के सामने एक डिबेट होता था जब हम लोगों ने शुरुआत की थी. मैं इसलिए इस इवेंट को रिकॉल कर रहा हूं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. कैसे हुआ है उसमें हम लोग में ये डिस्कशन होता था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सीआरपीसी इज एप्लीकेबल फॉर द सुप्रीम कोर्ट, on which procedural law is applicable for Supreme.
सीआरपीसी और सीपीसी, बोथ। बड़ा ही कंफ्यूजन होता था कि क्या सीपीसी सीआरपीसी दोनों सुप्रीम कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। मीनिंग क्वेश्चन एकदम क्लियर है। तो पहला कंफ्यूजन ये होता था, डज इट सीपीसी एंड सीआरपीसी इज एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम। और ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सीआरपीसी और सीपीसी थ्रू आउट सारे कोर्ट के लिए, तो उसका इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट करेगा ही करेगा। नाउ विदाउट टचिंग द स्टैट्यूट बुक, सीआरपीसी और सीपीसी को टच किए बिना हम लोगों ने पूछना शुरू किया, मैंने स्पेशली, और ये सोचा कि सीआरपीसी और सीपीसी हायरार्की के लिए, एक कोर्ट है उसके बाद दूसरा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए हायरार्की नहीं है, क्योंकि दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। मीनिंग देयर बाय, यदि हाई कोर्ट कुछ गलती करता है या ट्रायल कोर्ट कोई गलती करता है, तो उसके करेक्शन के लिए हाई कोर्ट कुछ गलती किया तो उसके करेक्शन के लिए हायर कोर्ट, इन अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाए बाय एसएलपी, और अदर वे वो अपील में कन्वर्ट होता है। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती किया, तो उसका करेक्शन कैसे होगा? यदि हम स्ट्रिक्टली सीपीसी सीआरपीसी और अपील लगा दें, तब तो आगे कोई कोर्ट है नहीं, अगला स्टेज है पाकिस्तान, तो वहां हम जा नहीं सकते, तो वहां के प्रोविजन में तो कुछ है ही नहीं। इस चैलेंज को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर वाज अवेयर। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को, लुक यू जस्ट टेक दिस आर्टिकल 140, beyond every procedural part, your own practice and procedure, you just make your own rule regarding your practice and procedure, 145(1). अदरवाइज भी उन्होंने दिया वो, सो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा रूल बनाया। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ स्ट्रिक्ट इज दिस रूल? सुप्रीम कोर्ट रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील भी नहीं है, ये एक्सेप्शनल कंडीशन में लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं, राइट? सो इसको डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रूल्स हैं काफी फ्लेक्सिबल हैं, और कोर्ट को पावर है एज इन व्हेन रिक्वायर्ड किसी चीज को वेव ऑफ कर दे या किसी को बाईपास कर दे। आपको मैं एक ऑर्डर दिखा रहा हूं, अभी तक मैं ये कह रहा हूं कि although CPC, the provision of CPC and CRPC, it's strictly valid for trial court, strictly implemented. Something cannot be bypassed without it. मुरारी जी काइंडली माइक को म्यूट रखें। नहीं, मैंने कर दिया। So on that particular part वो strict है। Even High Court is also strict with this provision. Something except certain extraordinary power, exceptional power, वो तब होगा जब normal procedure end हो और उसका invoke होता है, जैसे 226, 227 as well as 482 and 151. Once I am saying 151 means section 151 of CPC, 482 of CRPC, and 226 and 227 is the constitutional article. So Supreme Court के लिए जो rule applicable है, that applicable rule is Supreme Court rules only, which is a combination of CPC and CRPC के कुछ प्रोविजन यहाँ पिकअप किए गए, लाइक रिव्यू ऑर्डर 47, सिविल रिव्यू, क्रिमिनल रिव्यू, दोनों के कॉम्बिनेशन वहां दिए गए। सो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर इज कंट्रोल्ड बाय देयर ओन रूल्स and not by the CPC or CRPC. However, they picked up some
as per their own convenience and conditions and requirement into them. But ultimately, I would like to read order 55. Just come to order 55. Inherent. Inherent power, आज especially rule 1. Yes. अब ऑर्डर 55 मिसलेनियस के अंदर है और इसका पहला रूल इटसेल्फ सेज द कोर्ट में, द कोर्ट मींस प्रिसाइडिंग कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में 17 कोर्ट हैं. एनीवन at the time of exercising their own jurisdiction, the court may for sufficient doubt shown, reason is there. ऐसे नहीं है कि unescorted है. Yes, sir. यदि sufficient reason हो तो excuse the parties from compliance with any of the requirement of these rules. Where is the strict? So पूरे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का कोई भी रिक्वायरमेंट के कंप्लायंस के रिगार्डिंग है जिसको वो एक्सक्यूज कर सकते हैं. अब लिमिटेशन को ले लीजिए. 60 दिन के अंदर, 90 दिन के, 30 दिन के अंदर है. सफिशिएंट कॉज शो कीजिए सुप्रीम कोर्ट को पावर. Isn't it? So may give such direction in a matter of practice and procedure as it may be considered just and expedient. Not only the just, सिर्फ justified ही नहीं होना चाहिए, expedient भी होना चाहिए. So the power of summary trial itself invested into it. वो आपके प्रोसीजर के चक्कर में वेट नहीं करता रहेगा, चाहे एनी टाइम बाईपास करेगा, एंड दे आर empowered. Am I clear up to this point or not? और यहीं से ये कहानी चलती है. So this is the most important provision of the rules जो मुझे लगता है which is overriding effect of all the requirement of each and every rule. And that power is vested to the court itself. प्लीज, मैं दूसरा चीज लेकर के बैठ गया. प्लीज आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस ओपन कीजिए एंड आपस में डिस्कस कीजिए. आज मैं एंजॉय करने के लिए. सर may I ask a question, sir? सर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी. अभी 1 मिनट पहले मैं शिल्पा मैम को ले लूं लूप में, देन वी विल डिस्कस. सर सिंपल क्वेश्चन है, वो ट्रांसफर वाला ही है, बट उसमें टू अल्टरनेटिव्स रेमेडीज प्रोवाइड करानी है. लाइक क्वेश्चन इज, in an issue of all India implication, there are several rate petitions filed before various high courts. You have to advise a corporate client with business in more than one state for appropriate legal proceeding. Explain in brief the options available for legal proceeding, including 2 alternatives before the Supreme Court of India. When the petition word is used, that means we will go for the Article 139 A1. But then what would be the another remedy, sir? 2 alternatives it is asking. Anyone would like to answer this question? Let me just clarify the one thing. Confirmation from Shilpa ma'am that regarding the question, understanding of question, क्योंकि मैं इसको लेकर के बहुत सीरियस रहता हूँ. मतलब हिंदी में मैं कहूँ तो ये है कि आपके क्लाइंट को बहुत सारे जगहों पे मैटर फाइल करते हैं. Yes, sir. आपको 2 रेमेडी एडवाइस करनी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट. 2 अल्टरनेट रेमेडी बतानी है. बताइए वो कौन सा होगा जिसमें ये सारे सिचुएशंस को. Sir, there are several petitions already against that corporate client in various high courts. Correct. Got the point. So एक रेमेडी, मैंने कोई आंसर करना चाहेगा देन प्लीज वेलकम. सर पर इसमें एक रेमेडी तो आपका जो मैम ने बता दी सुप्रीम कोर्ट की थी वो तो है ही. दूसरा ये है कि वो हर जगह अलग अलग लड़े. ये तो रेमेडी नहीं हुई.
अलग अलग नहीं लड़ना है। Hello. सुप्रीम कोर्ट में ही अल्टरनेट एमिनिटी, टू Sir, अल्टरनेट एमिनिटीज sir, I will suggest, sir. I will suggest. एक मिनट मैम, हमको रेमेडी देना है, दर्द नहीं बनना है, लर और मर नहीं। We have to provide certain solution. एक तो मैंने आपके कहने का मतलब है कि एक रेमेडी तो मैंने सुझा दिया, मानना है तो मान, नहीं तो लड़ता रहे हमारा आपस में। नॉट लाइक दैट, हमको वो सजेशन प्रोवाइड कराना है। तो Yes, sir, yes, sir. एक और प्लीज अनदर विठल आदित्य सर प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, 139A1 and 139 एक रेमेडी तो रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर ट्रांसफर करना है सभी हाई कोर्ट का, नहीं तो किसी भी एक हाई कोर्ट में ट्रांसफर करें, दूसरी रेमेडी रहेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। 139A1 एंड A1 139A2 दोनों में दो रेमेडी रहेगी सर। Sir, specific question, alternative remedies before Supreme Court of India, specifically before the Supreme Court of India. So we will not say for the any other high court. सुप्रीम कोर्ट में ही जाके आर्टिकल 32 सर, Specific question is there, na? So specifically we have to answer. Sir, it is under Article 32 reduced सर बताइए सर, मुझे जो What is the third option? Article 32. read with Article 142. सर सर कंसोलिडेट कर दीजिए। Read with Article 142. Any more suggestions? सर सारी जगह के केसेस कंसोलिडेट करके एक स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए और वहां पर ही उनको कंटेस्ट किया जाए। ये कहाँ से, कौन से प्रोविजन की बात कर रहे हैं आप? सर आर्टिकल 32 के अंदर ही अगर आप ले इसको तो नहीं, आर्टिकल 32 में ट्रांसफर का ऑप्शन है क्या? नहीं सर, बट इनहेरेंट तो सर करना चाह रहे हैं, दैट इज करेक्ट। ओके, अच्छा, एनी मोर? यस सर, प्रियंकर सर प्लीज सर। Sir, I said 32 read with 142 sir. ओके, एनी मोर ऑप्शन? अच्छा प्रियंकर सर, आप मुझे एक बात बताइए, आपने जो ऑप्शन दिया है बहुत ही सटीक है, एकदम डॉट पे आपने हिट किया है, बट मुझे थोड़ा सा रीजन एक्सप्लेन कीजिए सो दैट कि मैं थोड़ा उसको और एंजॉय कर पाऊं। सर एक तो ऑलरेडी रेमेडी 139A1 में है, उसके अलावा सर 32 बिकॉज फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रही है, 142 बिकॉज इनहेरेंट पावर। सर मुझे आपसे बस इतना समझना है, व्हाई हैव यू सेड आर्टिकल 32 रीड विथ 142? Because an inherent power of the court also has to be exercised, sir, for clubbing of all the cases and consolidating them in one place. यानी उसको अब रीड नहीं करें तो क्या होगा? तो ये होगा कि 32 फंडामेंटल राइट के लिए बात बनती रहेगी ना सर। सो इनहेरेंट पावर को करना। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, यू आर वेरी मच करेक्ट। आप जरा इस तरीके से सोचिए, सोचने के तरीका को थोड़ा सा चेंज कीजिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और सब्सटेंशियल क्वेश्चन आपके साथ शूट करना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा पार्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन हो, मतलब circumstances is like 139A1, some cases is pending before the Supreme Court and so many cases before different high court. Option is this under article 139A1 कि सारे केस को सुप्रीम कोर्ट अपने पास विथड्रॉ करे, डिसाइड करे और वापस सबको भेजे कि अकॉर्डिंगली आप डिटरमाइन करें क्वेश्चन ऑफ लॉ को और वो डिसाइड करें। Is it possible सुप्रीम कोर्ट सारे केस को एक जगह क्लब करके एक हाई कोर्ट को दे दे कि नहीं तुम ही करो, मैं नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट वाला भी केस तुम करो? Is it possible? If yes, in what provision?
And I'm telling you, it was happened in the Agniveer case. Yes, recently Delhi High Court has dealt with that. वो सारे दिल्ली हाई कोर्ट That would not be possible, sir, because Supreme Court वाला केस तो कहीं जा सकता सर. वो गया है सुप्रीम कोर्ट के. मैंने आई एम टेलिंग यू, मैंने फाइल किया था. और वो Okay, sir. दिल्ली हाई कोर्ट और प्रशांत भूषण की जो केस थी, इट वाज ड्राफ्टेड बाय मी इटसेल्फ. हमारी टीम ने फाइल की थी, नॉट प्रशांत भूषण का केस, उसके पैरेलल. और सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड थे वो कुमुद लता दास थी, और वो मैटर वहां वापस हाई कोर्ट गया. सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया रिट पिटीशन, इट वाज सेंडेड बैक टू द हाई कोर्ट बाय द सीजेआई ऑर्डर. जानते हैं कहां कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन यहां पर क्लियर. अब जरा देखिए सुप्रीम कोर्ट के पावर्स कहां है. सुप्रीम कोर्ट के जो पावर वाले प्रोविजन है, दैट इज आर्टिकल 142, आर्टिकल 129, और इसके अलावा अलग अलग पावर्स हैं, जिसको कि आप कहिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 139A and 2 एंड अदरवाइज. जो अभी तक हमने एक एक आर्टिकल को टारगेट करके समझने की कोशिश. Now start reading with combination of 2, 3, 4 and जितना combination आप बना सकते हैं. प्रियंका सर, are you getting my point? Absolutely, sir. जो आपने कहा, आपने जो combination बनाया 32 with 142, so 142 के power to do complete justice, read with 32, and तब वो और बड़ा monster बन जाता है power का. And now take back, isn't it? तो इस तरीके Understood, sir. Understood. कॉम्बिनेशन जब आप बनाएंगे 129 के साथ, 142 के साथ, 32 के साथ, किसी भी चीज का, तो उसके पावर में वैल्यू एडिशन होता है, बट इन द नैरो पॉइंट. नैरो पॉइंट मींस व्हाट, कि दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां भी केस के पार्ट पे ये होता है, और जब ये दोनों पावर के साथ उसको शूट किया जाता है तो बड़ा ही सटीक और लंबे दूरी तक जाता है, और वो ऐसा जाता है कि कई बार समझ में नहीं आता. ये एक पार्ट था जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा था फॉर द कॉम्बिनेशन. सो द सॉल्यूशन की बात जब कोर्ट करती है तो ये भी एक एंगल है जिस एंगल से सोच सकते हैं आप. और एग्जैक्टली यहाँ पर दो ही ऑप्शन बचता है अल्टरनेटिव. वन इज 139A एंड अनदर इज 32 रीड विद 142. एंड एक बात और मैं कह दूं, 142 या किसी भी पावर की एक्सरसाइज, जैसा AR अंतुले में लिखा हुआ है 7 जजेस बेंच वाले में, कि कोई भी पावर किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट इन्वोक कर सकता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो ऐसा नहीं है, मतलब एक मैटर पेंडिंग है 136 में, वहां जरूरत है 32 इन्वोक करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट इज हेल्पलेस कि नहीं तुमने तो 32 में फाइल किया, मैं वो कैसे इन्वोक करूं. नो, सुप्रीम कोर्ट कैन. हाँ, ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है, आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस में ये भी कहती है कि भैया 142 का एप्लीकेशन फाइल करो. सर, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ भी तो कर सकती है कोर्ट. नहीं, वो भी कर सकती है, लेकिन आज के डेट में एक नया ट्रेंड भी देखने को आया है, और उसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है. और मुझे लगता है कि रिगार्डिंग दिस पार्ट, सुप्रीम कोर्ट के पावर के रिगार्डिंग, इवन जजेस आर नॉट मच वेल वर्स्ड जो इस तरीके का ऑर्डर पास करते हैं. सर, इसमें मेरा एक अभी रीसेंट एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं शेयर कर सकूं. प्लीज मैम, नाम मत लीजिएगा किसी जजेस का. आई एम सॉरी. नहीं, नाम नहीं सर, एक अच्छी चीज है. इंसान से ये जो इवेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता है कि उनको ये रूल के बारे में, ये पावर के बारे में शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है या पता नहीं है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो आर्गुइंग लॉयर हैं वो उनको एम्पावर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि ड्यूटी उनकी भी कहीं ना कहीं आ जाती है रिगार्डिंग दिस. दिस इज द एक्सॉल्टेड पावर ऑफ AOR. सर, ये जो अग्निवीर वाला, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट अग्निवीर वाला जब ट्रांसफर हुआ, वो क्या आर्टिकल 142 में ट्रांसफर हुआ? फिर नहीं, रीड ऑर्डर से मैंने टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड टू एक्सपेडिएट एंड जस्ट एंड एक्सपेडिएट, कोर्ट ने क्या किया है कि भैया ये पूरा मैटर तुम ट्राई करो एंड देन कम बैक टू द सुप्रीम कोर्ट.
यहाँ पर आपका res judicata नहीं अप्लाई करेगा। उन्होंने 32 के पिटिशन को वहां पर बोला कि आप 226 में पहले डिसाइड कर लो, ट्रांसफर टू द हाई कोर्ट एंड देन विल कम। मतलब व्हाई वी आर लूजिंग द वन फोरम, आपको एक फोरम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया 32 के बाद, तो पहले आप वहां कर लो, उसको कन्वर्ट किया एंड देन उनको बोला कि आप डिसाइड करो, इफ देयर एनी इन्फॉर्मेटिव देन वी विल करेक्ट इट एंड नथिंग रॉन्ग इनटू दैट। व्हाई वी आर उन्हें इसमें टेक्निकलिटी में जाने के बजाय वो सारा फाइल रिकॉर्ड के साथ वहां कोर्ट भेज दिया गया। It was in my knowledge it was the first instance, और उस समय मैं बड़ा कंफ्यूज था कि ये हो कैसे गया है। तो तब I raised so many questions to someone जो बड़े-बड़े lawyers और 20-25 साल पुराने थे, तो उनका एक ही जवाब था, भैया सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी कर सकते। अब उस जवाब को जस्टिफाई करने के लिए मुझे ये रास्ता निकालना पड़ा। There is a combination of powers they can exercise. No one can stop them to invoke it, isn't it? Yes, and sir. that's what the Supreme Court, माने even नीचे का कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट cannot, even high court cannot, because the last resort ये सारे powers हैं, ये rule है, everything they are empowered to do that, and which is a very exceptional move in the Indian adjudication history, which can do the only Supreme Court, none other than this. Are you convinced with it? Yes, sir. Yes, sir. Even I And was confused that time, sir. that is why Supreme Court is supreme. Sir, I have a question. Yes, Sir, it is regarding, मतलब I have a major doubt in one question. आप unmute कर लें, अच्छा लगेगा. If you do not have any problem. Sorry, मतलब video on कर. Sir, I cannot actually. Okay, then continue. Okay. Please. Sir, I have a query. Does a non-speaking order dismissing a petition for special leave constitute res judicata? सर इसमें res judicata पे इतना स्ट्रेस आएगा तो मतलब I have a doubt with this respect to कि non speaking order से res judicata पे सर मतलब how does it non speaking order यहाँ res judicata का जो application, even you can say the doctrine of merger, not only But sir, res judicata. सॉरी टू इंटरप्ट बट सर डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर में तो हम एक मतलब एक वाइडर व्यू में आते हैं, बट एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर में इफ आई फाइल वन एसएलपी Wider view on different dimension, right? Right, sir. If we take an example, like if I file an SLP, if the honorable judge, I got your point. मैं थोड़ा सा substantiate ये कर दूँ. If you are deciding on merit on certain issue, right, sir. then res judicata is came into the picture. Otherwise, res integra is available. सॉरी सर आपकी मतलब आवाज ब्रेक हो गई थी. Otherwise, res available. But the question is this. स्वाति जी जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. राइट सर. Once res judicata came into picture, right, for your right, not for the discretion of the court. यदि आप ये res judicata की बात करें, तो वो आप तब करें on merit, तब करें जब आप अपील में. सर अपील में तो एनी हाउ मैं हूँ ही, वैसे भी मैं कोई ऑर्डर लेकर आई हूँ. आई एम ऑब्वियसली इन एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बट if you are coming under article 136, right, can you say that you are in appeal? No, I have invoked my It's a right. stage. It is a gateway. तो वहाँ पर sorry sir, मैं थोड़ा सा 136 यहाँ पर लाइट डालना चाहूँगा. 136 डिस्क्रिशनरी पावर क्यों है? sir excuse me Swati ma'am, can you please mute yourself? हाँ, तो जब हम 136 की
बात क्यों करते हैं, क्यों ये स्पेशल है? स्पेशल इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रोविजन है जो केस टू केस आफ्टर अप्लाइंग द डिस्क्रिशन कोर्ट क्या करता है, आपको अपील का राइट क्रिएट करके देता है। अदरवाइज आपको राइट टू अपील एग्जॉस्ट हाई कोर्ट हो चुका है। राइट टू अपील जो है, वन राइट टू अपील जो यूजुअली और सेकंड अपील एज एंड व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड, इट इज एग्जॉस्टेड अप टिल हाई कोर्ट। नाउ यू आर कमिंग टू हियर कि वन मोर अपील इज रिक्वायर्ड, allow them, and then court exercising the jurisdiction, and then if convinced they are allowing, तो आपका फिर से वो अपील कन्वर्ट होगा, एंड देन आप अपील के पावर वहां पर आएंगे, एंड ऑल द रेस्ट जुडिकेटा एंड एवरीथिंग ऑफ द पेमेंट होगा। बट once this came to SLP stage and dismissed without any proper order, only speaking or non speaking, but anything on merit, not on merit, it's a dismiss In limine. तो कहां से रेस जुडिकेटा आता है? रेस जुडिकेटा वहां पर आएगा क्योंकि वो रूल इटसेल्फ इन्होंने कह रखा है कि दोबारा तुम नहीं आओगे, अदरवाइज वो लूप ऐसा घूमता रहेगा। तो इस at this very threshold point, they also, even Form 28, they generated कि this is the first SLP, you cannot come again against this particular order. Otherwise, यदि यहाँ पर खोल दिया जाए ये रास्ता, तो ये infinite loop में enter कर जाएगा, and everyone will come again and again, गोल गोल घूमता रहेगा। However, जब ये मेरिट में मतलब अलाउ हो जाता है, तब ये अपने दूसरे डोमेन में एंटर कर जाता है, दैट इज कॉल्ड द अपील। फिर उसके बाद ऑन मेरिट वो सब कुछ जाना शुरू होता है, और अपील के सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो वहां अप्लाई। एम आई एबल टू क्लियर योर आंसर, स्वाति मैम? Right sir, thank you. But sir, आपका explanation is highly appreciable, but to the context to write this answer, sir, थोड़ा सा clumsy है। I have मतलब I'm not able to ना make a crux out of it to how to answer this question, basically to write in the exam. Oh, that's what. Please that's throw what, some light. That's what we can say exactly. 136 is not the appeal. After granting 136, it will convert it into the appeal. Make the distinction on that particular point. This is not so we can say 136 is not the matter of right of appeal. It's a discretion of the court. Even I'll show you something. Just a wait. I'll show you something. Sir, into this 136. may I add in between? हाँ. Till then, मैं जरा 136 नहीं कर रहा। जी स्वाति मैम, as per my understanding, what we can add is when SLP has been dismissed either in limine, I mean without giving any permission, the rights per se have not been decided. It is just that they have denied the discretion. Exactly. They have not exercised their discretion. The appeal or the case See, has on your screen the things is there. Notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may, the word focus on the may, in its discretion, grant a special leave to appeal. May, it's not mandatory. Right sir. Discretion is there, grant a special leave to appeal. So the word is grant. Once they grant it, effect of that granting is that one appellate jurisdiction is open, new appellate jurisdiction is open for the party, for the petitioner, isn't it? It's a jurisdiction, it's a one jurisdiction. That's why this 136 is very different, क्योंकि after exercising this part, आपको एक नया jurisdiction ही create हो जाता है अपील का, जो है ही नहीं। और आपके केस के लिए सर, क्योंकि केस डिपेंड करता है। And of course, in all the cases,
not to enter into the infinite loop either speaking or non speaking, यहाँ पे res judicata ऑपरेट होना चाहिए. Right, sir. Thank you, Ajay sir, and thank you, Rajiv sir. But, sir, I'll come back to you tomorrow again with this question if I am not able to answer it again. Okay, I'll give you the hint. If you will go to the DD versus 136, यदि आप वहाँ पे पढ़ें, the lot of judgment on this line is there. Right, sir. मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पढ़ने के अलावा मैं सोचने का कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, why, ये अलग चीज क्यों हो. उसे सोचने के दौरान में बहुत कुछ कनेक्ट होता है, हमेशा दिमाग में बना रहता है, समथिंग डिस्टर्बिंग है तो, और जहाँ कोई चीज कनेक्ट हो जाए ना तो एक अलग ही प्लेजर और स्माइलिंग फेस पे आता है कि चलो कुछ नई चीज मिल गई. यानी ट्यूबलाइट की जो बत्ती बुक बुक कर रही थी ना, वो कहीं ना कहीं जल गई. सर मेरी अभी थोड़ी बुक बुक कर रही है, वो जली नहीं है पूरी. मैं कल फिर से आऊंगी उसको और देखते हैं फ्यूज होता है कि लाइट ऑफ, तो कल देखते हैं सर इसके लिए. बाकी थैंक यू सो मच. सर 136 पे कंटिन्यू करना है. Some blink is you have, at least the spark is there. लेट्स सी सर कल क्या होता है इसमें. Do some research and find out the way. राइट सर, थैंक यू. सर 136 पे ही हैं अब अभी भी हम. मेरा क्वेश्चन सर वापस घूम के दोबारा आ जाते हैं. हाँ प्लीज, कम से कम 136 को ही थोड़ा निपटा लें. Yes sir. सर मेरा क्वेश्चन है, what are the rules that Supreme Court had dispelled in exercising the power under Article 136? तो सर अगर हम सिविल का बात करें तो रूल नंबर 1 to 15 ऑर्डर 21 में जाता है, ऑर्डर 22 रूल 1 to 12. सर इतने में हमारा आंसर खत्म हो जाता है. तो अगर ये हमसे डिटेल क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ रहा है तो हम इसमें किस तरीके से इसको डिफाइन करके लिखें, कितना हम इस पे इनकॉर्पोरेट करें. पहले एक सवाल, आप लोगों में से किसने इनका क्वेश्चन समझा? कंटिन्यू इट, क्योंकि मैं वो फ्लो ब्रेक हो गया था, मैं उनको रिपीट कहने के बजाय मैं अजय जी को बोलूंगा आप एक्सप्लेन प्लीज. अजय प्लीज सर. अगेन एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मैं सर को कन्वे करता हूँ. अनम्यूट करें. अगर सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. am I audible? My sound will be coming from another window. जहाँ तक मेरे को समझ आया सर, she is asking what are the rules that Supreme Court have for implementation of powers under 136? No. Then repeat your question, Sardaji. What are the rules that Supreme Court has disciplined in exercising the power under Article 136? What answer I have gave is Order 21, Rule 1 to 15 of Supreme Court rules deals with special leave petition civil. My second point is Order 22, Rule 1 to 12 deals with this special leave petition criminal. So ये हम. Ma'am, if I'm not wrong. Yes ma'am. Please continue. हाँ, इसमें जो स्पेशल रिपीटिशन सिविल अंडर ऑर्डर 21 and 22 स्पेशल रिपीटिशन इन सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बोथ विल बी included. Ma'am, that is clear. My question is, अगर मैं 21 की ही अगर बात करूं तो इन टोटलिटी हमारे पास 15 पॉइंट्स है. 15 पॉइंट्स में भी पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स है. तो जैसे सर मुझे जितना समझ में आया कि मैं छोटा सा सर आंसर मैंने रेडी किया है वो मैं पढ़ सकती हूँ. मैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा और कंफ्यूज कर दूं. यस सर. थोड़ा सा प्लीज, मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज करके मैं एंजॉय करना चाहता हूँ. ठीक है सर. और एंड द थिंग इज दिस कि आप सिर्फ ऑर्डर 21 एंड 22 की बात कर रही हैं. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, does part 1 is not applicable on 221 136? Does this part is not applicable? The entire provision of this part is applicable there, isn't it? Yes sir. Yes sir. So अब इसको आप कैसे नरेट करें, including that? कर दिया ना मैंने कंफ्यूज आपको. Yes sir.
Yes, sir. even though I am talking about the order of 55 जो अभी अभी दिखाया था, यस सर। एक और जोड़ दिया ना, प्लीज आप बताइए। सर ये तो क्वेश्चन ही सर के ऊपर से चला गया। मैं अगर शायद जहाँ मैं इसका आंसर कर पा रहा हूँ श्रद्धा जी, प्लीज। it is not with regards to the rules of Supreme Court rules. Probably they are asking for the rules in spirit which the Supreme Court has devised through precedents, कब ये पावर एक्सरसाइज करनी है और किन केसेस में ये पावर एक्सरसाइज नहीं करनी है। So when a special equity is made or relief under good conscience is required, वो जो सर डी बसु वाला एक्सट्रैक्ट बता रहे हैं उसमें ये क्लॉज मेंशन्ड है that when the power under 136 will be exercised and when Supreme Court will refrain, for example when a fraud has been the petitioner is trying to play a fraud or a misconcealed information is there, in all those cases Supreme Court will refrain from exercising that power. I believe the question wants to ask those rules. सर मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्म 28 को लेते हुए सर कुछ उसके आगे पूछना चाह रहे हैं, मतलब जो मैंने परसीव कर पा रही हूँ। आपको लगता है ना, बट यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट एनी वन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास इंटायर वर्ल्ड होता है कि जो ऑप्शन आप चाहे वहां लिख सकते हैं, दैट इज योर ओन। द क्वेश्चन इज इफ ऑब्जेक्ट मार्क्स सेंट्रिक क्वेश्चन भी होगा, ओनली डेडिकेटेड माने स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर SLP in the Supreme Court rules is provided by order under order 21 and 22. If the marks is 1 marks or 2 Yes, marks. sir. Yes, sir. And especially for civil and criminal different are there. ठीक है। और यदि पूरे एग्जॉस्टिव रूल की बात करें तो मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट रूल्स especially focus on this and including all rule as and when required and applicable, including general part is there, वो भी मैं करूँगा। और even though schedule is also there like court fees and all. Yes, sir. Cannot even the form 28 we cannot escape from that. All are the interlinked. सर मुझे यही लग रहा था जो आप बता रहे हैं, बट मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसके बाद मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बात करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में स्पेसिफिकली यदि पूछे कि कहाँ है, yes, तो कहाँ में आप 32 ही सिर्फ मतलब फॉर्म 28 ही नहीं ले सकते, कोर्ट फीस भी तो डालना पड़ेगा। यस सर। या कोर्ट फीस के बिना सोच लेंगे? नहीं भी सर, कोर्ट फी डालना पड़ेगा। इवन उसके अंदर यदि पहले से कैविएट पड़ा हुआ है तो ऑर्डर 15 भी आपको देखना ही पड़ेगा ना। यस सर। So the entire Supreme Court is there. So why we will talk specific rule by rule or order by order? Why not we can see the entire rules are there. सर सिविल क्रिमिनल सर दोनों का ही पार्शियली बताना होगा। क्यों जाऊं मैं सीधा SLP की बात में क्यों ना करूं? उसके अंदर इनहेरेंट है दोनों। Why should I go so specific? ठीक है सर। यदि हमको च्युइंगम की तरह थोड़ा और खींचना है, मार्क्स ज्यादा है, टाइम बचा हुआ है, बहुत कुछ लिखना है, वो स्पेसिफिक। अदरवाइज यू से ओनली द SLP की बात करें तो ऑर्डर 21 एंड 22 दीजिए। और आप एडिशनली आप ये लिखना चाहते हैं रिगार्डिंग कोर्ट फीस, इंक्लूड दिस शेड्यूल फॉर द पर्पस ऑफ द फॉर्मेट, इंक्लूड दिस। हालांकि उस 28 की चर्चा तो आपको 21 में और ऑर्डर 22 में भी है। यस सर। यस सर। क्यों स्पेसिफिकली इधर हम जबरदस्ती कनेक्ट करते हैं? सर बहुत क्लैरिटी मिल गया मुझे, मैं बहुत क्वेश्चन को लेकर पर्टिकुलर ऑर्डर क्यों नहीं पढ़ ले हैं? यस सर, राइट सर। और इवन दो ही रूल आप पिकअप कीजिए ना। रूल 1 इज टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन। यस सर। रूल 2 जो लिमिटेशन एग्जैक्टली आपका लिमिटेशन एंड कोर्ट फीस सारा वहां पर पीछे चला जाएगा। यस सर। 28 मतलब जो कंसर्न रूल है इसके तहत जाता है, उसको आप डिस्कस कर लीजिए, जिसमें कि सारे प्रोसीजर्स वहां दिए और सिविल क्रिमिनल अलग अलग। यहाँ एक ही आप पढ़ लीजिए तब भी चलेगा। यदि स्पेसिफिक क्वेश्चन है फॉर सिविल व्हाट, फॉर क्रिमिनल व्हाट, देन गो स्पेसिफिक।
Yes, sir. Why so much confusion? Be smart कि कहाँ पर हमको कौन सा आंसर लेकर के जाए। ठीक है सर। Thank you, sir. यदि Sir, may I add? हाँ, of course, why not? Sir, we can write the scope of Article 136. That's a different You thing. landmark some cases along with that. Hey, if that's we a different take thing. the If thread. they are- Ma'am, that if specifically it is asked that what is the एक minute. First of all, we focus on question. What they are asking specifically. We will confine on them. After that, you can expend your own जितना horizon है आप 136 और rules and limitation मैंने तो अभी तो बहुत जगह पे travel कर लिया। It doesn't mean कि मैं सब कुछ लिखूंगा। यदि टाइम अलाउ करेगा फिर भी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा आलसी। ये काम तो मैं नहीं करने जा रहा। Why? कहीं ऐसा ना हो कि उनके अंदर ये इंप्रेशन चला जाए कि मैं हनुमान हूं। मुझे कहा गया है संजीवनी बूटी लाने के लिए, अब मुझे पता नहीं है संजीवनी क्या है, मैंने पूरा पहाड़ ला करके दे दिया। यदि मैं सब कुछ लिख दूं तो क्या ये कंफ्यूजन इंप्रेशन नहीं जाएगा? और यदि मैं ये कहूं कि पहले तुम्हारा आंसर का जवाब ये है, ये लो संजीवनी बूटी जो तुमने मांगा था, और उसके बाद उसको कहो अब ये भी लो, अब ये भी लो, अब ये भी लो, अब ये भी लो। यदि इस तरीके से कोई आपको दे, आप क्या कहेंगे कि जो मुझे चाहिए वो दे, बाकी नहीं चाहिए तू जा, ना मुझे ना चम्मच चाहिए ना कटोरी, तू जा। सर एक और 136 पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास पे। बाकी लोगों को भी थोड़ा मौका देते हैं। विल कम बैक अगेन। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक्चुअली कल से क्वेश्चन पेंडिंग था एथिक्स के ऊपर। सर आई वाज गोइंग थ्रू एथिक्स, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो सर बार रेगुलेशंस वगैरह के लिए पूरा है, एडवोकेट्स एक्ट वगैरह सही है, उसका कुछ इसमें। ये अदर मिसकंडक्ट का जो फैक्टम है ना सर, वो थोड़ा सा मतलब टू ट्रैक एग्जैक्टली कि कुछ तो कॉलेज के टाइम से जजमेंट्स चली आ रही है एडवोकेसी एथिक्स पे और आपका 7 लैब्स हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट अदर मिसकंडक्ट पे कहाँ पे स्पेसिफिक आपको फ्लेवर पहले मैं रेफरेंस आपको बता दूं। जी सर। अजय जी ने बहुत सारा कुछ ये गूगल ड्राइव पे डाल रखा है डॉक्यूमेंट। जी सर, मैंने टाइम शेयर किया था, उसमें एक डॉक्यूमेंट है ये हंसारिया सर का। ओके सर। आई वेंट थ्रू इट। ओके सर। और उनका अपना 30 या 40 पेज के अंदर है, उस नोट्स में समराइज करके उन्होंने दिया हुआ फैक्ट है। जी सर। एक रेफरेंस वो ओके सर। छोटा शॉर्ट एंड स्वीट है, वन गो यू कैन रीड इंटायरली। जी सर। अनदर मनिंदर जी सर, वो देखा मैंने। ये दोनों को आप रीड कीजिए, बहुत सारा कुछ आपको मैथ मिलेगा, वो रिवीजन भी हो जाएगा, बट यू कैन फाइंड आउट द क्रक्स। दीस टू आर द रेफरेंसेस। जी ठीक है, वो अपने जगह पर। अब मैं रेफरेंस के बजाय अब आपके क्वेश्चंस पे एंटर कर। जी सर। उससे पहले मैं बाकी लोगों से ओपिनियन ले लूं कि समवन वांट टू एंटर इनटू देम। एनीवन वांट टू आंसर दिस? Yes, sir. प्लीज। Question conduct, misconduct, sorry. It is the deviant conduct of the advocate when he is performing his duty as an advocate. Same advocate, when he is doing something which is deviant from the behavior of a standard is more than a normal person. He is not working as an advocate. But his नहीं, मैं अलग सेंस में थोड़ा सा सुनूं। थोड़ा सा मुझे मुरारी जी मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं एकदम वो कहते हैं ना आम लैंग्वेज में मशीन क्या है वो समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर जब कंडक्ट एंड मिसकंडक्ट की बात आती है, ये बहुत ही ब्रॉडर सेंस में यहाँ पर आप देखें, मैं एडवोकेसी से थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। जितने तरीके के जॉब अवेलेबल हैं, सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट। जी सर। और वो मिनिमम है, आपको पुलिस के लिए उसका कोड है, आईएएस ऑफिसर्स के अपने कोड है। जी सर। हर एक एम्प्लॉइज के अपने कोड है सर।
violation of that particular code is what? Basically moral turpitude and violation of code of conduct. The moral turpitude I am not there. That is the entirely Misconduct. different thing. That is misconduct. The conduct जो लिखा हुआ code of conduct जो है एक coded part है कि आपको ये That is करना है। professional misconduct. That is called professional misconduct. नहीं sir, नहीं Rajiv, that is called professional misconduct. You have given the answer perfectly. that is Your rule- not only sir Ajit sir, that is not only the professional misconduct. No, apart from that defined in the rule, apart from the defined rule, that you have conduct. Sir, please be explain it. Right. थोड़ा सा और उस पे थोड़ा अजीत सर एक सेकंड उनको सुनने दीजिए क्योंकि my question is something else. ठीक है कंटिन्यू जी सर बताएं सर प्लीज कंटिन्यू सर. मैं ये कह रहा हूँ this is the one parameter which you are bound to follow right professionally मतलब जिस पब्लिक ऑफिस के लिए आप बैठे हैं वो उस पब्लिक ऑफिस का डिमांड है। जैसे एक पुलिस थाने में पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है, उसके आगे कोई कंप्लेन लेकर के आता है और वो कुछ नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। He is duty bound to register their case, isn't it? और यदि वो नहीं करता है तो that is not fit for that particular office. Correct. Unfit है and this is the misconduct और उसको वहां से हटा देना चाहिए। जी तो जिस प्रोफेशनल ऑफिस पब्लिक ऑफिस के लिए आप हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है जी। वन पार्ट एडवोकेट के लिए आप ये देखिए ये बार काउंसिल रूल्स में इतने सारे कंडक्ट्स लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट टू ऑब्जर्व्ड बाय एडवोकेट। जी सर। इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ ड्यूटी है। ड्यूटी मीन्स व्हाट? जब आप ड्यूटी की बात करते हैं यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ड्यूटी, इवन यू कैन नॉट बी आइडल, यू नीड टू परफॉर्म, otherwise vacant this office. Your office is a public office, sir. You are the officer of the court, sir, isn't it? sir. तो आपकी जो ऑफिस है उस ऑफिस से ये मिनिमम एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कोड आपको फॉलो करने हैं और इसका वायलेशन यूजुअली प्यूनेटिव है जो सेक्शन 35 को डायरेक्टली अट्रैक्ट करता है। एक का भी वायलेशन सफिशिएंट है सेक्शन 35 इन्वोक ऑफ एडवोकेट एक्ट इन्वोक करने के लिए और आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स लेने के लिए और आपको पनिश सर राइट। बट द क्वेश्चन इज दिस, not only whatever is the written, it is only decided right and wrong. मतलब जितने तरीके से चूंकि आपके हाथ में है, आपको निर्णय लेना है, बहुत सारे कंफ्लिक्ट हैं, ये सारा चीज सब कुछ इस कोड में लिखा नहीं जा सकता है जी। सो बहुत सारे मिसकंडक्ट ऐसे हैं जो यहाँ लिखा ही नहीं है जी सर, क्योंकि ये तो लिमिटेड है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है इसकी। ये लिमिटेड एग्जॉस्टिव नहीं है और ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है बट ऑब्जेक्टिव है आपका प्रोफेशनल ड्यूटी जी राइट जी। So that is called whatever is not written there. But sometimes a smell is there. और वो चीज समझ सकता है एक प्रोफेशनल ही कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, even a common man also. So that is called moral turpitude. वो ethics का पार्ट है। जी जी। Am I clear up to this point or not? जी सर, जी सर। So these two collectively concerned regarding professional misconduct, written or unwritten. जी। Even though आपका Order 4 of Supreme Court rules unbecoming of AOR का Rule 10 है, कहीं डिफाइंड ही नहीं है कि क्या है। It's basically ethically decided by your practice colleagues or even environment कोर्ट के द्वारा और आपके colleagues के द्वारा डिसाइड होगा your which act is comes under misconduct. कोई कोर्ट नहीं है वहां पे,
बट सर ये तो फिर बड़ा डिस्क्रेशनरी हो गया ना। एग्जैक्टली, बहुत सरकार ब्रॉडर है, के हिसाब से। अल्टीमेट ब्रॉडर है, अल्टीमेट ब्रॉडर है। तो अब जैसे क्वेश्चन था सर एथिक्स के पेपर में लास्ट ईयर, आप उसको लिमिटाइज नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में हम बाद में जाएंगे, हम दूसरे पार्ट पे एंटर करते हैं। जी सर। ठीक है, दूसरा पार्ट ये है, ये और उसके पीछे जो बिहाइंड ये है कि यू आर द रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। आइडियली यदि कुछ, यू आर द इंटेलेक्चुअल इन द सोसाइटी। सो लोग आपसे आते हैं पूछने के लिए, यदि ट्रबल में है तो एडवाइस लेने के लिए आते हैं। दे आर पेइंग फॉर योर एडवाइस एंड यू आर ट्रेन्ड टू एडवाइस देम, इवन एक्सपीरियंस्ड आल्सो, राइट? तो उस यू आर लिटरली द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी जी, एंड एट द सेम टाइम custodian of the rule of law. You are the only community which knows which is expected कि आप पूरे लॉ को जानते हो। लाइसेंस इसी चीज के लिए, और कोई नहीं, इवन न जजेस न पुलिस, एवरीथिंग इज नॉट, इवन लॉ फ्रेमर भी नहीं। आप लॉफुली बाकी सबके हद को डिफाइन करते हो और जानते हो लॉफुली, ये इसकी कस्टडी आपके पास, यू आर द कस्टडी। ठीक है, तो आपका कंडक्ट रिगार्डिंग प्रोफेशन तो है ही, आपके अदर कंडक्ट भी मॉनिटर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी बीवी की पिटाई कर दी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके ऊपर आ गया जी, this is never ever concerned and connected with the profession. This is your personal domain under your privacy, or even the other law is attracting, right? And you are convicted there, sir. तो क्या आप इस पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए राइटफुल हैं? Okay, you're not setting a good example for the society, so that exactly. So that's what this is called, the other misconduct. तो ये वैसे हो गया सर, जैसे एज इफ आई मे सर, मतलब ये वैसे हो गया जैसे एज जेंटलमैन ऑफिसर्स व्हाइल वी वर सर्विंग, तो एक मतलब अगर आपका ट्रैफिक चालान, मतलब स्पेशली इफ यू आर पोस्टेड अब्रॉड, आपका ट्रैफिक चालान भी हो जाए ड्राइविंग का, तो आपके फ्लाइंग लाइसेंस पे आ जाती थी हमारे टाइम पे। Because of this reason only, even you are the reference for the society, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एक जेन्युइन एंड प्रॉपर बिहेवियर का, और इन अदरवाइज कोई भी punitive action आपके ऊपर चला lawfully and you are convicted for that, but not concerned to this profession, even moral and otherwise. Okay. Profession, then all the things except professional capacity will come under the other misconduct. Got it, sir. Right. Very clear, but the sir. question is this, the another tricky question will come in your exam, that is regarding misconduct. Yes, sir. Which comes under both, either professional or unprofessional. And it is, misconduct is always misleading with error or mistake. क्योंकि यूजुअली वहां प्ली ये होता है कि गलती से ऐसा हो गया और हम अवेयर नहीं। How, what is the test to identify that it is misconduct or tort? Sir. अब वो फाइन लाइन है ना, कोई भी मिसकंडक्ट आइदर आपका प्रोफेशनल हो या अदर हो, जब उसकी बारी आती है और कोई गलती होती है, तब वहां चेक किया जाता है। एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो टेस्ट में साफ सामने आ जाता है, व्हाट इज द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अवेलेबल। उससे पहले ये पता लगाया जाता है कि व्हाट वाज योर इंटेंशन, और उस इंटेंशन से में कहीं भी आप बेनिफिशियरी पाए जाते हैं इन एनी मैनर, जी सर, या किसी को आप फेवर करते हैं जो आपके नियर एंड डियर है, then certainly your intention is very clear and it will be amounted as misconduct. जी सर, got it.
Another point is this, if your intention is there, मैं मान लो कि मैंने एक गलती कर दी और वापस आकर के कह रहा हूँ किसी से उसका फायदा भी मान लो हो भी गया, बट आई एम एडमिटिंग एपोलाइजिंग कि नहीं ये गलती हो गई है, इट शुड बी करेक्टेड, किसी ने कॉट नहीं किया, उस कंडीशन में मेरा इंटेंशन एकदम क्लियर है। जी सर। है ना? So the word intention clearly reveals assessment of the intention on the basis of other footprint or evidence. It clears does it misconduct or not. ओके, ये सबसेक्वेंट कंडक्ट आपका कैसा रहा है उसके बाद जब वो चीज गलती हो गई आपसे? नहीं, जो आप वहाँ का फुटप्रिंट है ना, ये एविडेंस जो कलेक्शन होगा आइदर पर्सन ओरल और डॉक्यूमेंट्री व्हाटएवर और द इलेक्ट्रॉनिक, उसको जब कलेक्ट किया जाएगा और असेंबल किया जाएगा तो अपने आप पता चल जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है, और इंटेंशन ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। और उस केस पता चलता है कि ये वाकई, पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये मिसकंडक्ट है, देन वो चेक किया जाएगा कि इज इट प्रोफेशनल कैपेसिटी और पर्सनल कैपेसिटी और बोथ, और इज इट कोडेड और अनकोडेड। गॉट इट सर। The first central problem, everything is there, but in center misconduct is not there, then मिलेंगे नहीं। क्रिमिनल में क्या होता है, कॉग्निजेंस एक वर्ड, और ये एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट? कॉग्निजेंस ऑफ इवेंट, अकरेंस, घटना का। माने जैसे मान लो कि किसी को गोली मार दिया गया, एक डेड बॉडी पाई गई है और उसका गर्दन कटा हुआ है या गोली लगा हुआ है। This event, it is found. This event itself reveals commission of offense. जी। And वहाँ कॉग्निजेंस लिया जाता है और उसके बाद फाइंड आउट किया जाता है कि who is convicted. सर। क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो एक एक करके पता चलता है, इसीलिए कॉग्निजेंस हमेशा एक्यूज के लिए नहीं है, इट इज कंसर्न टू द इवेंट। सबसे पहले इवेंट एस्टेब्लिश किया जाता है कि वाकई ये घटना घटी है। अब जैसे मान लो एक इंपॉर्टेंट केस है कि वन पर्सन इज मिसिंग और उसको किडनैप करके हत्या कर दिया गया, ये वो मर गया, लाइसेंस मान लो इंश्योरेंस क्लेम करना है और वो पता चला जो कि वो मर गया और उसकी डेड बॉडी ही नहीं मिल रही। तो व्हाट इज मिसिंग हियर? द मिसिंग पार्ट इज कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि उसकी मतलब कि वो एक्चुअली मर गया है, कि मर्डर हुआ भी है कि नहीं। सो कॉग्निजेंस ही नहीं है ना। जी 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 सर, गॉट इट। दैट्स द वेरी सेंट्रल पार्ट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टूड सर, एनालॉग विद दिस मिसकंडक्ट। समझ गया सर। लास्ट थिंग, I'll share a recent judgment of 2019 के अजय सर एक सेकंड बस, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग विद दिस with your last question only. I'll be sharing a judgment of 2019 okay. Please. When certain advocates had stormed into the office of a CJM, that was considered to be under other misconduct. Which judgment is this, sir? It is of 2019. I had downloaded it yesterday. I don't remember the name. I'll share it on the group. Thank you so much, sir. Appreciate, sir. जी सर। राजीव सर, लास्ट थिंग इज कि एक ना बड़ा इशू ये आता है कि जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका बेसिक आंसर एक लाइन का होता है अगर क्रक्स देखा जाए। अब जैसे लिखा हुआ राइट अ शॉर्ट नोट, हेबियस कॉर्पस, एक लाइन की डेफिनेशन है उसकी, एंड मतलब इट इज नॉट मोर देन अ फ्यू लाइंस बेसिकली, और क्वेश्चन है 5 मार्क तक का, तो फिर भी आप निकाल लो 5 मार्क 10 मार्क का। तो अब ऐसे में जहां उसका बेसिक क्रक्स ही 2-3 लाइन का है, तो उसमें 10 मार्क के बराबर मतलब कैसे उसको एक्सपैंड किया जाए? बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर। Have you seen my answer sheet? I don't think, sir, because I was just catching up on this. शायद मुझसे मिस हो गई हो। Ask you something. Sir. But question is there. ये statutory warning है आपके लिए. Repeat it at your own risk. Okay, sir. I'll show you. This is basically a 10 marks question. Where is that? Yes. This is my answer sheet.
You can see my name is there. This is for the purpose of professional ethics only for the year of 2020-22 exam. Only paper I repeated for that particular time because of I was in regulation 1. Okay. You can see I am at this particular page, professional ethics. And this is the answer tally marks. कैसे कैसे मुझे marks मिले थे? ये complete section 1 and 2.5 marks के थे. Just forget it. Just come this 3, 4 and 5. Okay. Right. ये 0.5 marks के questions थे. And total I got in that paper is the 73. Okay. Now, you can see this page is concerned to, are you aware about this? What is that? This is the question. If you will see here, this is the BCI rules. And this one is the objective. So many words is missing and you need to build it up. We need to build it up in this particular case. I went through, मुझे मतलब मैं इन सारी चीजों को जीता हूँ, but फिर भी I did a mistake and left so many things. So ये बिल्कुल true false वाला कहानी था. सारे rules जो BCI rules थे वहाँ पिकअप कर लिए गए थे and यहाँ तक आ गए. Now you can notice at the side ये कितने number pages पे है. Out of 20 we are at 10th page. Right, sir. Now rest answer is only in 10 page. Sir. Am I clear? Sir. Now the thing is, you need to find out this is the answer what I wrote. And especially I'll tell you, 20 number के questions जो last में थे, ये देख लो आप. ये section 1 duty to the court, duty to this. So all the 7 sections I wrote there. One page is there regarding Supreme Court rules and all. This is the another page and I got the 7 marks. I'll show you something more. This is the question number 4 of section 3. Here I got the 3 marks. You may find out the length of the answer. This is concerned to the section 35 जिसके ऊपर मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ. Out of 5 I got only 3 marks. And this is the reference. See, there are 2 parts, sorry, it was 10 I guess. 3 here for A. And this is the answer only. Other misconduct, it's explained regarding this other misconduct only. And I wrote this definition in upper part and next paragraph, the illustration. Another is the B, where disciplinary committees regarding this bar council, and one reference is there in one line, AIR this bar council of this full court 7 judge bench. यहाँ पर एक पैरा हमने दिया था, right? I got 7 marks. In the another page you will see the another question. Question 6 of section 3, and this is again point wise. You know the this. Sir. The court time, saving the litigant and money energy of the both. This is regarding mediation. I am also the mediation at the Supreme Court panel. Expeditious disposal of the list, non-approval of settlement and all this. I got the 6 marks out of 10. Sir, screen is not visible. Sorry? Sir, screen is not visible. I think only I am facing this problem or others are also facing the same problem. Okay. So this is the 1 page answer, 10 marks. Sir. This is question number 7 of section 3. Again, this is the 10 marks. 1 point, 2 point, 3 point, 4 point. Sir. And 6 point, and 6 marks again I got. Sir. 6 and 7. Question 1 of the section 4, I guess it was 5 marks, and I got the 3.
only one page. This is the point, the brief summary. मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ. Prescribed by the Bar Council of India under the BCI rules. I summarize the entire rules within 5 points. Okay, Not to act and plead. This is my own understanding. Half page. Another 5 marks. Another got 3 marks, which is the 60% of all. And rule 36. This is again half page. Question 6. Again half page and got the 3 marks. समझ गया सर. अभी मैं और आपको दिखाता हूँ. This is question number 7 of 4. Strike, no. Strike cannot be justified and all. I wrote there. I got the 4 marks. थोड़ा ज्यादा लिख दिया था, एक नंबर मिला इसके लिए. Section 5 was containing, I guess, around 20 or 10 marks only. Okay, sir. It was concerned to the 7 lamp of advocacy. We have to write another thing what you think. So in that questions, I wrote the honesty was the most important lamp among them. It is my own language, and then I put it into the 5 points. So rested into the self-satisfaction and all these things. Other part is there. And finally, the another question, the other qualities are. So I wrote this 12 quality, what was in my mind? 13 quality. Got it, sir. And I got 8 marks out of 10. Great. Okay, sir. And ultimately, I got the 73 marks. आप देखेंगे ये पूरे आंसर सीट में एक ही जगह मैंने रेफर किया सर इस साइटेशन का. It was the good experiment and experiment without citing any citation. I wrote the entire paper. Got it, sir. Within 10 pages. मतलब सर कंटेंट मैटर करता है लेंथ किससे ज्यादा. Exact. See, the objective is not the content. Objective is the clarity to the answer. Got it, sir. सवाल जो पूछा जा रहा है और आपके वर्ड कॉपी पे जो कम्युनिकेट हो रहे हैं एग्जैक्टली उसके आंसर उन तक पहुंच रहा है या नहीं. राइट सर. That's the ultimate. See, there is a difference. यदि मैं कहूँ कंटेंट की बात तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कब एक्सपेंड करेगा, कितना एक्सपेंड करेगा और कैसे. Isn't it? यदि मैं साथ में कि नहीं भाई इसका जो है ना कंटेंट नहीं, अब इसका साइज भी आपको बड़ा होना चाहिए, पैराग्राफ वो भी उस आंसर के साथ मिसमैच करता है. सर जी यदि तो पॉइंट वाइज लिखना है तब भी एक इंड ओपन है कि कितना लिखना है. तो ये वाला जो ओपन कंप्लीटनेस वाला जो पार्ट है, जो सेंस ऑफ फीलिंग के चलो मैंने पूरा कर लिया और अब कंप्लीट कर लिया, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होता है ना वो पॉइंट वाइज होता है सर. एक क्वेश्चंस के अंदर कई क्वेश्चंस के होते हैं. तो आप माने ये जो मैंने आपको दिखाया है कॉपी, यू मे ट्रीट एज द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग. राइट सर. मैंने जो यहाँ पर थ्रू आउट सेशंस डेवलप किए उसमें इसको मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया है. और मेरी ये उम्मीद मैंने एक्सपेक्टेशन है कि जो कोई भी मार्क्स जिस किसी को भी आए वो मेरा जो मिनिमम मेरा जिस पेपर में है उससे कम कोई नहीं ले. समझ गया सर. मुझे आप लोगों के जो मार्क्स चाहिए वो इससे ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बाद अब आप आगे बढ़ रहे हैं. जी सर. वेल ट्रेन्ड जिसको कहते हैं ना वहां पर. जी सर. सर हमारे एथिक्स तक बार रेगुलेशन ठीक है, जो नए लीगल रूल आ रहे हैं लीगल एजुकेशन के वो तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है ना सर. लीगल रूल्स के क्या रहे? रूल्स फॉर लीगल एजुकेशन सर, पीछे इनके ऊपर काफी बलवा हुआ है और मतलब अभी इन्होंने बीच में कुछ रिवाइज भी किए थे,
तो उनके ऊपर तो कोई कंपैरिजन नहीं आएगा ना कंडक्ट उसका वगैरह। ध्यान मत दीजिए, वो चलता रहेगा। सेंट्रल पार्ट तो अभी यही है, ठीक यही है है। इन्होंने लेक्चर में कुछ नई चीजें तो ली नहीं ना। थोड़ा बहुत ही है सर, वो मतलब लीगल एक ही होता है कि लीगल एजुकेशन के क्या रूल्स है, क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे चीजें आई हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह। बट ठीक है सर, क्योंकि मुझे यही था कि हमारे एथिक्स पे तो है, पर लीगल एजुकेशन भी उन रूल्स में आ रहा है या नहीं, तो उनको छोड़ दें या करना है उसके एवज में मैं एक ही लाइन कहूंगा जो आपके आंसर का हिस्सा नहीं हो सकता। जी बताएं सर। व्हाट वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग सर क्या जी, Sir, दिस इज द लीगल एजुकेशन इंट्रो लेटर सर जी सर। तो ठीक है, ये वो थैंक यू सो मच सर, माय डाउट्स आर क्लियर्ड सर। हाँ निहारिका जी प्लीज। सर आई हैव 2 क्वेश्चंस। वन द क्वेश्चन एक जो पूछा जा चुका है, मुझे क्लैरिटी नहीं आई थी जो ट्रांसफर पिटिशन वाला था, और दूसरा मेरा एक अपना क्वेश्चन। तो ट्रांसफर पिटिशन वाले में सर उन्होंने जो 2 रेमेडीज बताई थी, एक तो 139A1 की है, दूसरी आर्टिकल 32 रेड विद 142 है। तो आर्टिकल 32 में विच फंडामेंटल राइट हम कह रहे हैं वायलेट हो रही है, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसकी एग्जैक्टली वो फंडामेंटल राइट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज की नहीं है टू डू कंप्लीट जस्टिस और सेव कोर्ट टाइम है। सी 32 का इन्वोकेशन इज नॉट ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट। कल भी मैंने इस चीज को डिस्कस किया था। इवन जो लॉ जो बना है वो प्रोसीजर प्रॉपर नहीं है, तब भी 32 इन्वोक करते हैं। और इवन द मच ब्रॉडर स्कोप यदि हम देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए क्या करेंगे, 32 इन्वोक करेंगे। यस In another word we can say in the extraordinary situation what we discussed earlier. So this is a certain extraordinary situation. तो सर कोई भी हमें फंडामेंटल राइट हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है कि 32 because 32 is not partly guaranteed. तो exactly it is liberal, it is a liberal। वहां पर आप जो है ना फंडामेंटल राइट जो इन्फ्रिंज है, दैट राइट कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फ्रिंज, इट मे बी एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। ऐसे कुछ केस लॉस तो है जिसमें उन्होंने ये बोला था कि डायरेक्टर्स कैन फाइल बिहाफ द कंपनी सेइंग द फंडामेंटल राइट। another part वो जो है ना दैट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 12। मतलब कौन सा स्टेट होगा, कौन किसका लोकस होगा, किसका लोकस नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट पार्ट। द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल इन मेनका गांधी सर। बट मैं यहाँ पर एक चीज और कहता हूँ, एक्सपीडियंस एंड कंप्लीट जस्टिस की जो बात है 142 उसको आप कैसे इन्वोक करेंगे? सर वो तो कहीं भी कर सकते हैं सर, वो तो बिल्कुल ही ना हमारा रेसिडुअल क्लॉज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा 142 लिखा। तो वो आप बताइए यहाँ पर आपको कौन सा इंस्टांस है जहां वो इन्वोक करेंगे इस पर्टिकुलर केस में? उसके लिए जो आप कोई भी इंस्टांस लेकर के आएंगे, केस लेकर के आएंगे कोर्ट के सामने, जब तक केस नहीं होगा तो वो इन्वोक नहीं होगा। यस सर। आप एक रेमेडी ले लिया 139A1, जी सर, दूसरा रेमेडी आप लेकर के आइए जहां उसको इन्वोक कराना है, कौन सा रेमेडी आप प्रेफर करेंगे? यदि आप 136 लेकर के आते हैं तो वहां कोई ऑर्डर होना चाहिए, दिस इज एपलेट पार्ट। यस द ओनली ओरिजिनल थिंग में बचता है आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर 32। यस, जहां आप ये कहेंगे कि इन्वोक 136, isn't it? यस सर। तो सर 1 and 2 ये नहीं हो सकता 39(1)(a)(1) और 2 अलग-अलग दो अल्टरनेट Two is the different thing. 2 is the one high court to another high court, so they can also consolidate more high court to one high court. तो क्वेश्चन जो था उसमें यही था कि बहुत जगह बहुत सारे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कर सकता है, वो भी कर सकते हैं 139। तो जो क्वेश्चन था एक्चुअली बस उससे मैंने आपको ये बोला देयर आर ऑल प्लीज दे देंगे सर, कोई कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे उनको, जो ठीक लगेगा वो रेमेडी को उठा सकते हैं। आपको अलग लगे तो वो भी आप दीजिए। सो व्हाट वी डिड कि एक एक करके छोटे सी नंबर आप देखिए, 1 से 9 और 0, यही 10 नंबर है ना? जी सर। अब उसका कॉम्बिनेशन 2-2 का ले लीजिए, 99 तक आप बना लेंगे। यस सर। लेकिन जब 3 का कॉम्बिनेशन ले तो अलग लेवल पे वो चला जाता है। यहाँ पर हमारे जितने भी पावर है उसको अभी तक हमने आइसोलेशन में 1 by 1 देखा है। यस सर।
और जब वो दो कंबाइंड होता है, जो एक मॉन्स्टर क्रिएट होता है, तब मतलब समझिए ना, 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, एकदम आइसोलेशन में अलग अलग, दो जब एक साथ चले क्या होगा फिर? तो सब शक्ति आ जाती है दुर्गा, तब तो मां शक्ति बनेगी ना। वही कहानी यहाँ पर होता है और वो एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाता है। जी जी सर। सर मेरा दूसरा, यस सर, हाँ प्लीज, यस सर प्लीज कंप्लीट, आप कुछ कह रहे थे? नहीं कंटिन्यू। ओके सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि इन writ petitions, whether civil, criminal or PIL, we do not file certificates, right? So is this correct? We file only the petition and the affidavit. Yes, that is not required, क्योंकि सर्टिफिकेट एग्जैक्टली रिक्वायर होता है कि नीचे के डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर है, और उसमें वैसा कुछ की रिक्वायरमेंट होती नहीं। ओके, ऑब्वियसली जब ये डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, बट एग्जैक्टली ओरिजिनल सिचुएशन में होगी ही नहीं। एग्जैक्टली, सो बस यही। बट सर इसमें हमसे सर्टिफिकेट मांगा था अभी पीछे, एक जो लैंडमार्क रेट चल रहा था मैरिज लॉ वाला, तो उसमें जो इंटरवीनर्स कई लॉयर्स को इन पर्सन आना पड़ा था, क्योंकि उनसे AOR का सर्टिफिकेट मांगा था, एंड बिकॉज आर्गुमेंट शुरू होने वाले थे, तो दे हैड लाइक लास्ट मिनट पे ऑल ऑफ देम जस्ट पुट आउट देयर क्लाइंट्स एंड they had to enter in person. ये हो चुका है सब लास्ट ईयर। फाइल एन एफिडेविट, इंटरवीनर्स के लिए तो लॉ है, you have to file an affidavit. वो अलग चीज है, वो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। उसमें also that's not a matter directly to in the general part filed at the time of filing the suit. So certificate has two portions. One is about the documents and annexures and the pleadings that have come from below. The second portion talks about the pleadings are essential to make out for the answer the questions of law and make out for the grounds urged. So is that portion necessary? Is that portion can be taken in writs and PILs? I mean, when documents are not there but certificate can be granted for these two things, that the pleadings taken and the documents annexed are required to answer the मैं आपको ये बता दूं, मैंने एक चीज और सोचा है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, what is certificate? Who can certify it? आपने जो एक्सप्लेन किया था वो ये था सर, who is the custodian of the document? Exactly, certificate के लिए certain things जो है ना, things मैं बोल रहा हूँ, not documents only, even understanding or even the conclusion, certain things के custodian आप हैं, आप certify करते हैं कि this is correct, taking the responsibility कि this is correct, it is concerned to the client कि this is genuine, this is concerned to the content, this is genuine, this is concerned to the document कि this is the part of that, up to that extent you can do ना। प्रिंसिपल सर्टिफाई करता है कि हाँ ये मेरे बच्चे, ये बच्चा मेरे रिकॉर्ड में, डेथ सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये करता है कि यस दिस, बर्थ सर्टिफिकेट अथॉरिटी वहां से सर्टिफाई करता है, यहाँ सचिन डेट के ये मदर फादर इनके बच्चे। So certificate contains certain responsibility, accountability and authentication. If it is found wrong and you are producing into the court, you are certainly subject to contempt, breach of trust directly. किस कॉन्टेक्स्ट में मांगा जा रहा है? आइदर रूल के थ्रू मांगा जा रहा है या कोर्ट टाइम टू टाइम अपने दिमाग से इवॉल्व करते हैं, एक सर्टिफिकेट दे दो, एफिडेविट दे दो, सॉर्ट ऑफ थिंग। यदि आप क्लाइंट्स के बिहाफ पे मांगेंगे तो कहेंगे आप एफिडेविट दे दो, और लॉयर को कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप सर्टिफिकेट दे दो या एफिडेविट। So when it is about verification of facts which can't by court of record cannot make the reference to, then the court can ask for an affidavit for it to be given an affidavit, because they have no other way of finding out whether this is the truth or not. Exactly. The simple and objective जो मेरे समझ में आ रहा है वही है, if you people are convinced then take it. Convince yourself. Otherwise if not convinced, find out another way. तो मतलब बिना मतलब में क्यों देना है सर्टिफिकेट when you can get away with less liability basically, especially in writ petitions. तो बस यही obviously मैंने वो एक certain purpose solve करे ना। Yes sir, yes sir, yes sir.
So let us bind up. Sir, one small point I wanted to make. कल Yes. भारत जी का एक क्वेश्चन था, साथ ही मयंक जी का था, मेरे ख्याल मयंक जी अभी नहीं है यहाँ पे, he has left, about the format, किसमें क्या requirement है. So I went into your answer sheet again and with the rider that you had just said कि it must be used at one's own risk, but I just wanted to show how things can be Please played do with. that. Please do that. अब मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, थोड़ा सा मैं 1 सेकंड के लिए मैं लीव लेना चाहूंगा. मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, ये चीज, मेरे आंसर सीट को आप लोग रेफरेंस मत बनाइएगा, और बनाइएगा भी तो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग. यस सर, बट जस्ट जो हमने रिट का फॉर्मेट कल फॉर्म 32 हमने कल चेक किया था. भारत जी, जी प्लीज. फॉर्मेट याद है? अरे अनम्यूट कीजिए भरत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. वो जो फॉर्मेट में स्पेसिफिक डिक्लेरेशन, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट्स थे 1 2 3 4, उसमें हमने कल देखा था कि बिल्कुल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं. बट अगर हम ये देखें, क्या आप देख पा रहे हैं? अजय जी, अभी आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए. जस्ट आई एम कमिंग बैक विद इन 5 मिनट्स. सर अजय जी प्लीज गो अहेड. ये दिख रहा है आंसर शीट? यस यस, क्लियर है. ये सर का आंसर शीट है 2021 आई बिलीव. हाँ 21 का है ये. इसमें वेयर इज दैट, ये नीचे नहीं आ रहा. क्या दिख रहा है? क्या स्क्रॉल हो रहा है? दिख रहा है. स्क्रॉल हो रहा है? हाँ स्क्रॉल हो रहा है. हाँ, so this is the first page. This is a writ petition that he had drafted under order 38 article 32. Now this under form 32 requires about 10 specific declarations or heads under which information is to be provided. So ये 2 वाला पोर्शन यहाँ ख़त्म होता है. अब यहाँ से शुरू होते हैं. As per the form 33, first portion requires particulars of the cause or matter against which petition is made. So ये सर ने एक general introduction पैरा दिया है. Second पैरा in that requires nature of the fundamental right infringed. But यहाँ पे सर ने एक general declaration दे दिया कि I have not filed any other petition. He has gone by general form 28 का format. He has not incorporated the requirements of form 32. उसके बाद next जो उसमें requirement आती है वो I believe किसकी आती है? Declaration की. दो declaration है. Third भी एक habeas corpus में है, but this is not habeas corpus. उसके बाद हाँ रेमेडीज एग्जॉस्टेड की आती है, फिर हाई कोर्ट की आती है, फिर आती है किस चीज़ की? फैक्ट्स की. सो ये डेक्लेरेशंस देते हुए नॉट गोइंग ऑन द स्पेसिफिक हेड्स की नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट कौन सा इन्फ्रिंज हुआ है, पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉज ऑफ मैटर क्या हैं. ही हैज़ जस्ट गॉन बाय ब्रीफ फैक्ट्स, बेसिक डेक्लेरेशंस एंड ग्राउंड्स एंड प्रेयर्स. उसमें 10 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, और सर ने मेरे ख्याल 6 से 7 में, ये 5वां है, ये 8वां है शायद, 4 3 4 5 और ये 6 और 7 ख़त्म कर दिया. द मार्क्स दैट ही हैज़ गॉट इज 20. कहाँ लिखा हुआ? इट वाज अ 25 मार्कर क्वेश्चन. So they have deducted 5 marks for this lacuna. ये रहा. नहीं 25 के 25 वो फिर भी कभी नहीं देंगे. नहीं, but there is content और format का वो जो bifurcation रहता है, तो content पे I think they have given him full. So when और format के साथ काट 20 have been secured without following any format, I mean without going specifically with that particular format which has been prescribed,
सो हमें अपने माइंड में ज़्यादा स्टॉन्च नहीं होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ आनी चाहिए. इट इज़ जस्ट दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच दैट फॉर्म इज़ प्रिस्क्राइबिंग वो हम पूरी कर दें. Correct. Just wanted to make this particular. Okay. Otherwise we can go with the general. हाँ Yes, हाँ sir. हाँ हाँ ये मुझे देख के समझ आया. आज सुबह मैं इसको देख रहा था, खुद आंसर राइटिंग कर रहा था. देन आई वेंट टू रेफर दिस. तब मुझे स्ट्राइक हुई कल की कॉन्वर्जेशन व्हेन यू एंड मयंक जी वाज आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस. देन आई रिमेंबर दैट आई विल शेयर दिस बिकॉज इट आंसर्स मैनी रिस्ट्रिक्शंस इन द हेड. ये बहुत रिजॉल्विंग लगा मुझे कि ठीक है, it is doable. They only want us to understand the case and present the details and the questions or the grounds that are required to address the cause. मतलब बेसिकली सर अगर रजिस्ट्री में ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा तो एग्जामिनर भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा. I believe so. शायद वो रजिस्ट्री के लेवल पे भी ना जाएं. वो सिर्फ इतना जाएंगे. और सेकंड चीज़ जो मेरे को समझ आई गोइंग बाय द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ before 22 and the question of 22 and 23, earlier there were specific questions कि ये material पूरा दे देते थे और draft this particular petition. So they probably it was a more of a rigid kind of कि हाँ इसी type का आप draft कर दो. Now they want to see your advocacy skills, क्योंकि 22 और 23 में वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, प्रोविजन ऑफ लॉ भी साथ में दे देते हैं पूरा डिस्क्राइब, एंड दे विल टेल यू टू ड्राफ्ट एन अप्रोप्रिएट पिटिशन, which I believe means that they are going deeper into your understanding. They want to see whether when all the things, the facts and the law is in front of you, what case can you present. They are only interested to know your understanding of things, not the rules, not the registry, because सर ने भी शायद इस बात को किया था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए, बट वी आर नॉट लॉ क्लर्क्स. ये रजिस्ट्री को हैंडल करना इज़ द टास्क ऑफ लॉ क्लर्क्स. वी शुड बी गुड विद द फैक्ट्स एंड द वे हाउ टू प्रेजेंट इट, provided a basic format is followed. I mean, taking care of the basics, if we are good with what case is there, what law says, and how we present it to secure the relief that we want, that is what they want to see. As per my understanding, I can be wrong. In this question, sir, sir, I have a question. जी प्लीज. आप लोग के साथ बस मुझे डिस्कस करना था. मतलब ये जजमेंट वाला इस बार जो लेक्चर हुआ था, इसमें somehow मैं नहीं गेज कर पाया कि कौन से इम्पोर्टेंट 10 जजमेंट्स होंगे जो मेरे को पढ़ने चाहिए. आप लोगों ने ऐसी कोई लिस्ट बना पाए हो? सर ने एक शीट शेयर किया था which is available in the Google Drive. I believe it is under leading cases folder of the drive. There he has segregated cases. मैं वो शेयर भी कर दूंगा specific document. There he has shared specific list, segregated them as per the domain they are related to, and if you will go and watch that video which is already there on the YouTube, he talks about how to go about them. That is, first preference he gives is to the PIL ones and the criminal ones, and thereafter he says if you have the time and the mental capacity left to go for the constitutional things where BSD, Keshavananda Bharti and all these, it's on the second page. The PIL and the criminal thing is on the third page, and then all these criminal and civil and arbitration and miscellaneous cases, they are segregated on the fourth page. So preference is, he says, if you are good with the the third page, that is the PIL and the criminal part, good amount is covered, and then secondly you can simultaneously either go for the miscellaneous or the Keshavananda, that constitutional thing, whichever you feel is doable.
that can be gauged. And I will also suggest जो रजिस्ट्री का लेक्चर हुआ था, make it on a 2x and 1 घंटे में या 2 घंटे में वो 2 लेक्चर्स हो जाएंगे. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे केसेस का आ जाएगा आपको. याद होता है नहीं होता है वो अलग किस्सा है, बट व्हाट आई वुड डू इज़ मैं उन वीडियोस को चेक करूँगा ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. फिर मुझे क्या करना है, कितना पढ़ सकता हूँ, सिर्फ वेरी शॉर्ट हेड नोट्स में से देख सकता हूँ, वो करना है. आप वो चेक, एक वेरी शॉर्ट हेड नोट्स का भी फाइल जो सर ने शेयर किया था वो भी उस लीडिंग केसेस वाले फोल्डर में है. इट इज़ जस्ट दैट आइटैलिक्स अपर वाला पोर्शन है, इट ब्रीफ्स ऑफ द होल केस. और आंसर राइटिंग में जहाँ तक मेरी समझ कहती है हमें 1 से 2 पेज लिखना होता है, वो उस आइटैलिक्स में भी कवर हो जाता है. सो वी नीड नॉट गो थ्रू द होल जजमेंट, वो सिर्फ आइटैलिक्स पार्ट कर लेंगे, दैट विल डू फॉर अस. Aditi, can you please share the link of the Google Drive for the future reference so that we can go I'll share on into the further discussion. अजय जी, ये QA सेक्शन में उसका जरा एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि you are also admin into that particular. I'll share sir, I'll share. सर अजय सर का जो पिछला क्वेश्चन था, अजय सर का और निहारिका मैम का, उस पे मेरा एक छोटा सा फॉलो अप था. सर एक तो ये था कि 130 वो जो आर्टिकल 32 विद 142 आप समझा रहे थे उसमें कॉर्पोरेट वाले क्वेश्चन में, उसमें सर बेसिकली निहारिका मैम के क्वेश्चन से आई एग्री कि मतलब कॉर्पोरेट का ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया जो आर्टिकल 32 में जाना हम जस्टिफाई कर सके. पहला तो ये था सर बड़ा बेसिक, और दूसरा ये था जो प्रैक्टिकली मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी इनकाउंटर किया है कि जो AOR है सामने वाली पार्टी ने क्लियर मैनिफेस्ट पर्जरी करी है, कंटेम्प्ट किया है कोर्ट का, हमने कंटेम्प्ट लगाया भी, बट टेकिंग perhaps a proceeding initiating a proceeding against the other AOR becomes difficult on the grounds जो एक practical question हमारे सामने आया है that the AOR will just say कि मैंने good faith में, client का काम था verify करके देना, मैंने good faith में lead counsel पे भरोसा करके इसको certify कर दिया. तो इतना डाउट क्रिएट होता है कि लीड काउंसिल का इशू है या AOR का है या क्लाइंट का है. तो इसमें AOR की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बेंचमार्क है वो क्या रिक्विजिट है और किस तरह से इसको, अगर कोई क्वेश्चन आए एथिक्स पे, that I explain right now. What is the meaning of certificate and what is your obligation? सर वो उसी से फॉलो अप हुआ सर, क्योंकि वहीं पे मेरे को लगा कि प्रूफ होगा कैसे, लिखा तो है पर वो प्रैक्टिकल इशू आता है. प्रैक्टिकली वो देखना है कोर्ट का काम है, हमारा काम है पॉइंट आउट करना. बट एनीवे मैं उसमें एंटर अभी ज्यादा नहीं करूंगा. बी अवेयर एट योर ओन एंड. हमारा काम है सर पेपर क्लियर करना. Yes, one thing I would like to share with you at the conclusion of this. Last 3 or 4 days I am suffering with certain fever because of heat wave and all. And after medicine I am sitting there and still I am enjoying the entire process. So this is very enjoyable moment during this particular tough time. Hopefully you people are enjoying. और बड़े ही मैंने एक idiot अंदाज में मैंने इसको resolve करने की कोशिश की है with common sense. I hope you people are enjoying these sessions. This is the very informal session. Yes sir, we are also. But एक मेरा बहुत basic doubt है कि if I may sir. Please. Yes sir. सर जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन बनती है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पेसिफिक रूल है क्या, जिसे इनहेरेंट पावर की 47 रूल 47 ही, ऑर्डर 47 ही लगता है उसमें भी? नहीं, ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं. देखिए सुप्रीम कोर्ट इतना लिबरल है ना कि आप ट्रायल कोर्ट में यदि कोई एप्लीकेशन दें और इवन हाई कोर्ट में, तो उसके लिए आपको 151 लेना पड़ेगा या किसी न किसी प्रोविजन के थ्रू जाना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के लिए जो भी एप्लीकेशन जाता है उसके लिए प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं. एक्चुअली लेक्चर में बहुत ज्यादा फोकस, वी मस्ट हैव टू अवेयर अबाउट दैट, बट इन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है. मयंक जी, इट्स वेरी क्लियर, इफ सफिशिएंट रीजन इज देयर देन कोर्ट आर कन्विंस्ड. मयंक जी, प्रोवाइजो 9(1) ऑफ ऑर्डर 21 है, वहां कंडोनेशन डिले की बात करता है. इफ यू वांट, लेकिन वो फाइलिंग की बात नहीं कर रहा सर, वो मैंने हां तो स्पेसिफिक यू कैन मेंशन कि प्रोवाइजो 9(1) रूल 9(1) ऑफ ऑर्डर 21, दैट इज अ कंडोनेशन डिले. होपफुली आज के डिस्कशन का पॉइंट रहा है काफी इफेक्टिव. 3-4 पॉइंट्स तरीके से डिस्कस हुए हैं
यस सर, मयंक जी अब आ गए हैं तो मैं एक चीज़ फिर से शेयर करना चाहूँगा। मयंक जी, गूगल ड्राइव लिंक पे सर की आंसर शीट है, आंसर शीट्स के नाम से, उसमें ड्राफ्टिंग का पेपर 2 का आंसर शीट आप चेक करना, सर ने एक रिट आंसर की हुई है आर्टिकल 32 के अंदर, रिट पिटीशन ड्राफ्ट की थी सर ने, वो आप देखना। अपना जो कल का डिस्कशन था रिगार्डिंग हेडर्स लिखना है नहीं लिखना है, उसका एक बहुत बड़ा आंसर मिलेगा आपको। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। स्टेप्स हम लोग आगे बढ़े थोड़ा टू टुवर्ड्स द कॉन्फिडेंस ऑन